କରିବା +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 4 ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ୟ ଉଦ୍ଭବମ୍ ବିକାଶମ୍ ଚ ବର୍ଣ୍ଣୟତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ବିକାଶ ତାହାର ଏକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ, ବୁଝିନେବେ। ଓକେ, ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲରେ ଯଦି ବୁଝିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ 2ରୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ତାକି ଯେପରି ଅଛି ସୁବନ୍ଧୁ ଦଣ୍ଡୀ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାକବିମାନଙ୍କ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣୁକରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିଛେ ତମେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଦେଖ, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ ବା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ, ବୁଝିକି ଯାଅ। ଓକେ, ତ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆମ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଆମ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିକରି ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, এইটা 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଓକେ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ, ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ପାଠ କରିଥାଉ, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖ, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ତାହା କହିଲେ? ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ, ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ। ଚମ୍ପୁ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ ଯେ? ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକମ୍ ଚମ୍ପୁ। ଓକେ, ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବାସ୍ତବ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିମନ୍ତ ଭାବରେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉ ତାହାକୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ରଚନାରୁ ହିଁ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ହେଉଛି କି ଗଦ୍ୟମ୍ କବିନାମ୍ ନିକଷାମ୍ ବଦନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ କବି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେହି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କୋଟେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତମେମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିଦେବ। ଓକେ, ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ଦେଇଦେବ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ଆସିଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଗଦ୍ୟମ୍ କବିନାମ୍ ନିକଷାମ୍ ବଦନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଗଦ୍ୟମ୍ କବିନାମ୍ ନିକଷାମ୍ ବଦନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟ ରଚନାରୁ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର
प्रतिभार सूचना मिली थाए आम ताहांको प्रतिभा विषय जानी पारि थाए। ओके ठीक अच्छे देख काव्यर लघुता अन्य एक वैशिष्ट्य मो गद्य काव्यर वैशिष्ट्य विषय जानी पहला जानले आम कौन जानिले पहला हूँ आमर कौन अच्छी विषय वस्तु को गोटे रुचिपूर्ण भाव में ताहार उपस्थापना करवा यहाँ अच्छी ना अत्यंत रुचिपूर्ण भाव में काल्पनिक वास्तव कथा वस्तु को उपस्थापना करने गोटे वैशिष्ट्य अटे। नेक्स्ट वैशिष्ट्य कण अटे तो काव्यर लघुता अन्य एक वैशिष्ट्य काव्य गोटे लघु काव्य बोले गोटे काव्य को केते कम समय आम कम आम लोक पाखरे भी समय अभाव तेणुक बहुत कम टाइम देवाक से चाहती तेणुक से करती लघु काव्य द्वारा तांको मनोरंजन हो पार ताहा कवि चेष्टा करथांती। लघु काव्यर लघुता गोटे एक वैशिष्ट्य अटे बुझीला तो ओके ठीक अच्छे। वैशिष्ट्य संस्कृत गद्य काव्यर प्राण कौन समास देख पिले माने संस्कृत आमर गद्य काव्य जो अच्छी तार प्राण आम समास को कही था कवि माने कौन करती पद गुड़िक समास करी छोट कर बुझी होची समास द्वारा कौन हुए पद बड़ बड़ पद गुड़िक छोट होता है ना ओके बुझीला ठीक अच्छे। शास्त्रकार केवल गद्य माध्यम ही समस्त शास्त्रीय सिद्धांत गुड़ी को अनायास प्रकाश करें कौन देख शास्त्रकार बोले किए जी मैंने शास्त्र रचना कर कवि माने महाकवि माने केवल गद्य माध्यम ही समस्त शास्त्रीय सिद्धांत को अनायास प्रकाश करें बुझीला कि शास्त्रकार बा कवि माने कौन करती केवल गद्य माध्यम ही समस्त शास्त्रीय सिद्धांत गुड़ी को अनायास अर्थात बिना क्लेश से माने कौन करती प्रकाश कर पारि कौन क्या सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत गुड़ी को अनायास से माने प्रकाश कर पारि बुझीला ओके एठारे आसवा आमर उद्भव इंट्रोडक्शन पार्ट गला एते भल भाव में बुझ ये बहुत क्वेश्चन माने आसी थाए जो इंट्रोडक्शन तुमको देली एटा पर मोस्ट इंपोर्टेंट ओके ये जो दिखाई बहुत इंपोर्टेंट ये बहुत क्वेश्चन गुड़ा आसी थाए ओके यहाँ जानी रख ठीक अच्छे देख ये देख ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट पिले यहाँ बहुत इंपोर्टेंट ओके नेक्स्ट आम देखा उद्भव उद्भव किपर आम गद्य काव्य ताहा आम जाना ठीक अच्छे देख संस्कृत गद्य साहित्यर विकास धारा परंपरा अत्यंत प्राचीन वैदिक कालरू एक सॉरी यही गद्य शैली व्यवहृत हो आसुची कौन है संस्कृत साहित्य आम विकास धारा परंपरा अत्यंत प्राचीन आम जाने संस्कृत साहित्य बहुत प्राचीन सर्वप्राचीन ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ कहले ऋग्वेद को जानी थाई बुझेगा आम वेद हूँ सर्वप्राचीन साहित्यिक ग्रंथ आम विश्वर सारा कहले था ओके तो तापर बुझेगा ये कि संस्कृत साहित्यर विकास धारार परंपरार अत्यंत प्राचीन परंपरा अत्यंत प्राचीन वैदिक कालरू यही गद्य शैली व्यवहृत हो आसुची कौन कालरू यही गद्य शैली व्यवहृत हो आसुची ना वैदिक कालरू यही गद्य शैली व्यवहृत हो आसुची बुझेगा देख लौकिक ये लौकिक भल से जना पड़े ना किंतु ये लौकिक लिखाई लौकिक संस्कृत वाङ्मयर गद्य साधारणतः ओज गुण युक्त ओ दीर्घ समास युक्त अटे बुझीला पिले कौन अच्छे ओके लौकिक संस्कृत वाङ्मय ये लौकिक लौकिक संस्कृत वाङ्मयर गद्य साधारणतः ओज गुण ओ दीर्घ समास युक्त दीर्घ समास बहुल ये बहुल अच्छी ओके बुझ देख ये गोटे इम्पोर्टेंट यहाँ कौन अच्छे यहाँ जो अच्छी आमर कौन अच्छी ओज गुण युक्त एवं दीर्घ समास युक्त देख संस्कृत लौकिक संस्कृत वाङ्मयर गद्य काव्य साधारणतः ओज गुण युक्त एवं दीर्घ समास बहुल बुझेगा ये बहुल अच्छी ये बुझेगा ये ठीक अच्छे पेज को जा देख ये अच्छे वेदरे संस्कृत गद्य शैलीर अनेक सामंजस्य परिलक्षित हुई आमर जो वेद रही आम वेद केतोटी पिले 4टी हाँ ऋग यजुः
साम अथर्व ओके वेदत्रयी कहले देख वेदत्रयी हूँ आमर कौटा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तीनोटी वेद हूँ वेदत्रयी परवर्ती समय अथर्ववेद ता सहित युक्त होती वेदत्रयी कहले आम बुझी थाए ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद को ओके यहाँ मन रख वेदत्रयी यहाँ क्वेश्चन आसी थाए प्रायतः ये आसेनी बाकी अन्य एग्जाम गुड़िक जहाँ अच्छी से कमन गोटे जेनेल क्वेश्चन ठीक अच्छे आम बुझिले वेदर संस्कृत हाँ वेदरे संस्कृत गद्य शैलीर अनेक सामंजस्य परिलक्षित हुए वेदरे कौन है गद्य शैलीर सामंजस्य परिलक्षित हुए देख पे मैंने आम जो यजुर्वेद रही आम कौन गद्य शैली रचित बुझेला गद्यात्मक यजु कह जाए गद्य शैली रचित से गद्यर मिली थाए देख आगको वेदरे व्यवहृत गद्य सरल दीर्घ समास युक्त उपमा अलंकार मध्य व्यवहार प्रयोग रही देख जो आमर वेद रही से व्यवहृत गद्य जो शैली रही गद्य कौन है से गद्य शैली आमर सरल और दीर्घ समास युक्त उपमा अलंकार कौन अच्छी सरल अटे एवं दीर्घ समास युक्त देख सरल और दीर्घ समास युक्त उपमा अलंकार मध्य व्यवहार प्रयोग करा जाइछि बुझेला वेदरे किपरि प्रयोग अच्छी वैदिक साहित्य आमर ये पढ़ुचे ना ओके संस्कृत साहित्य इतिहास कौन ठारू वेदरू ही उत्पन्न बुझी होछि तो ओके वैदिक काल परे ब्राह्मण ग्रंथ मानकरी मध्य गद्यर सुंदर प्रयोग लक्ष्य करा जाए वैदिक काल जेपरी कला परे वैदिक काल परे परे कौन है ब्राह्मण ग्रंथ गुड़िक रचना कर ब्राह्मण ग्रंथ मानकरे मध्य आम गद्य शैलीर सुंदर प्रयोग देखा जाइछि बुझिला यह गद्यर शैली अपेक्षाकृत उत्कृष्ट देख ये ओके कौन कह आमर जो गद्य शैली रही से यह गद्यर शैली एवं आम जो वर्तमान जो गद्य शैली देखुचे अपेक्षाकृत उत्कृष्ट धरणर होइछि बुझीला ओके नेक्स्ट पौराणिक जुगर गद्य साहित्य और आलंकारिक दृष्टि अत्यंत उच्च कोटीर पौराणिक जुगर जो गद्य साहित्य रही आलंकारिक दृष्टिकोण जो वेद समय आम जो गद्य साहित्य रही कौन अपेक्षा एवं उच्च कोटीर रही कहुच्छी शिलालेख गुड़िक अत्यंत प्रौढ़ आलंकारिक और भावव्यंजक गद्य शैली व्यवहृत होती आमर पौराणिक समय तथा आमर हिस्ट्री जो आम इतिहास रही से शिलालेख गुड़िक द्वारा अत्यंत प्रौढ़ सुंदर अलंकारिक भावव्यंजक गद्य शैली व्यवहार करा जाइछि बोली एठी कहा जाइछि ओके वैदिक कालरू आरंभ होइथिबा संस्कृत गद्य शैलीर विकास धारा अनेक समय अनेक प्रतिष्ठित व्याकरणिक दार्शनिक कवि मानक द्वारा परिपृष्ट होई आसीछि वर्तमान पर्यंत मध्य ताहा विभिन्न कवि मानक द्वारा तार विकास धारा अपरिव्यक्ता रही ओके पिले माने एहा आमे जानिले कवि मानक जो सॉरी से गद्य साहित्य आमर उद्भव विषय ओके तार विकास किपरि होइछि ताहा आमे जानिबा भिडियोटी टिके लॉन्ग हो जाउछि पेशेंस रखिकी भल भाबरे बुझी दियो ओके ना गोटे आउ पार्ट करदेवी ना गोटे करदेवी ओके गोटे करदे ठीक अच्छे तुम मैंने यहाँ को पेशेंस देखी दियो कारण यह बहुत इम्पोर्टेंट ओके देखा विकास तार विकास किपरि ओके सुबंधु यह गोटे प्रॉपर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन से पिले माने सुबंधुंकर जो काव्य तांकर विकास गद्य साहित्य रे विकास रे सुबंधुंकर भूमिका किपरि रही ताहा कौन तांकर रचना कौन इंट्रोडक्शन टाइप देखी तुम सुबंधु विषय एत लिखिदेले बहुत भल मार्क्स रही थाए ओके मु प्रत्येकंकर भलरे लिखिछि याकु देख सुबंधु जो महाकवि सुबंधु जो अच्छा सुबंधु गद्यकार देख संस्कृत गद्य साहित्यर प्रथम रचयिता सुबंधु प्रथम रचयिता बोली आम सुबंधु को जानूँ ओके संस्कृत गद्य साहित्यर प्रथम रचयिता सुबंधु बोली
जना ओके प्रथम रचयिता किए बोले कहले कौन कह सुबंधु बुझीगला ओके सर्ट क्वेश्चन आसए तेणुक भलरे बुझिकी जाओ जेपरिक कौन क्वेश्चन आसे तुम मैंने भलरे कर ओके सुबंधु समय षष्ठ शताब्दी सुबंधु समय केते षष्ठ शताब्दी मध्य भाग देख पिला माने मु जहाँ पढ़ाऊँ तुम मैंने मन देकी शुण ठीक अच्छे भलरे बुझी नि सुबंधु होती प्रथम रचयिता संस्कृत गद्य साहित्यर प्रथम रचयिता कहली सुबंधु तांकर समय होची षष्ठ शताब्दी मध्य भाग बुझीगला बाणभट्ट निज कादंबरी रे सुबंधु रह टिके ओके हाँ देख बाणभट्ट निजर कादंबरी रे सुबंधुंकर जो देख ये निजर बाणभट्ट किए कादंबरी रचना करिसेंती देख तुम मैंने सुकनाश उपदेश जो पढ़ुच सेटा कादंबरी ही अंश विशेष तुम बाणभट्ट विषय भल भाव जानिछ मत कहबार आवश्यकता नहीं तेणुक मुझे कहूनी ओके तो जो महाकवि बाणभट्ट अच्छा से निजर कादंबरी रे सुबंधुंकर बासवदत्ता ग्रंथ विषय रे उल्लेख कर सूचना देइछंती बुझिला महाकवि सुबंधु जो सुबंधु महाकवि सुबंधु अच्छा रचना कौन गोटे विख्यात रचना बासवदत्ता एवं से बासवदत्ता विषय रे महाकवि बाणभट्ट कवि तांकर जो गद्य काव्य श्रेष्ठ गद्य काव्य रही से सुबंधु बासवदत्ता ग्रंथ विषय रे सूचना देइछंती बा उल्लेख करिछंती बुझिला बाणभट्ट समय होची सप्तम शताब्दी बाणभट्ट समय केते सप्तम शताब्दी तुम मैंने जानिछ ना पढ़ीच भलरे पढ़ीच ना ओके बाणभट्ट समय सप्तम शताब्दी तेणु सुबंधु पूर्ववर्ती एणु सुबंधु समय षष्ठ शताब्दी बोली आमे ग्रहण करवा बुझीला बेले बाणभट्ट होती सुबंधु परवर्ती कवि ओके बाणभट्ट पूर्ववर्ती किए ना सुबंधु तेणुक सुबंधु समय आम केते बोली जानिछे षष्ठ शताब्दी महाकवि बाणभट्ट समय होची सप्तम शताब्दी एवं महाकवि सुबंधुंकर समय होची षष्ठ शताब्दी मन रखिब तो बाणभट्ट समय केते ना सप्तम शताब्दी बाणभट्ट समय सप्तम शताब्दी एवं सुबंधुंकर समय केते केते षष्ठ शताब्दी ओके हाँ गोटे ओडिया गोटे इंग्लिश लिखिदेली ना किसी ना 7 सप्तम शताब्दी बाणभट्ट समय एवं सुबंधु समय षष्ठ शताब्दी ओके क्लियर ठीक अच्छे ओके देख सुबंधु रचना बासवदत्ता जो सुबंधु रचना बासवदत्ता यह गोटे विख्यात बहुत विख्यात लाभ करिछि ओके सुबंधु रचना बासवदत्ता सुबंधु बासवदत्ता नामक एक गद्य काव्य रचना करथिले यह कथावस्तु संपूर्ण काल्पनिक अटे यही जो बासवदत्ता ग्रंथ रचना कले महाकवि सुबंधु ताहा कौन तार विषय वस्तु किपरि अटे ऐतिहासिक अटे ना काल्पनिक अटे ना वास्तविक अटे संपूर्ण काल्पनिक अटे मन रखिब बासवदत्तार विषय वस्तु संपूर्ण काल्पनिक यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आसी थाए कि बासवदत्तार विषय वस्तु किपरि अटे तो संपूर्ण काल्पनिक अटे बुझेला संपूर्ण काल्पनिक बुझी तो देख जो क्वेश्चन आसी थाए मु तुम मानू से पढ़ाऊँगी प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन को ये कवर करुँची बुझी तो मैडम टाइम वेस्ट करुँच भावनी जो मैंने भल भाव क्लास देखिकी जीव निश्चित भाव में भल करके आसो एग्जाम को ओके बुझीला सुबंधु बासवदत्ता जो गद्य काव्य अच्छी ताहार विषय वस्तु तार कथा वस्तु किपरि अटे संपूर्ण काल्पनिक बुझीला तो ओके श्लेष उपमा तांकर जो काव्य रही से ही ग्रंथ जो अच्छी तांकर गद्य काव्य रही से कौन कौन से अलंकार गुड़िक कौन कौन से प्रयोग करछंती ताहा देख श्लेष उपमा एटा श्लेष उपमा ओके श्लेष उपमा विरोधाभास परिसंख्यान प्रभृति विभिन्न अलंकार सॉरी ओके टिके ओके ठीक अच्छे देखिबा क्यों अलंकार
ଶ୍ଲେଷ ଉପମା अलंकार ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଉପମା अलंकार ବୁଝିଲା ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଏଠି ଶ୍ଲେଷ ଉପମା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଉପମା अलंकार ବିରୋଧାଭାସ अलंकार ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ अलंकार ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି କବି ସୁବନ୍ଧୁ ନିଜର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କବି କେଉଁ କେଉଁ अलंकार ଏଠିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କିପରି ସେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା କି? ओके क्लियर तो क्यों क्यों अलंकार श्लेष एवं उपमा अलंकार विरोधाभास अलंकार परिसंख्यान प्रभृति विभिन्न अलंकार मध्य से विषय वस्तु को सुंदर भाव में उपस्थापना करिसंती एवं कवि सुबंधु निजर विशेषत्व को बजाय रखिसंती बुझिला बेले माने ओके एटा टाइम वेस्ट होनी बहुत क्लियरली मु तुम मानक बुझे पढ़ाऊँगी ओके महाकवि सुबंधु विषय बुझी पारे तो देख एत यहाँ अच्छी यहाँ आम गद्य काव्यर विकास जिते लंग क्वेश्चन लिखी ये लिखे यहाँ ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट आम बाणभट्ट विषय देखा महाकवि बाणभट्ट सुबंधु प्रथम ओके मन रख सिक्वेन्सली मन रख कि सुबंधु होती प्रथम गद्य संस्कृत गद्य साहित्य प्रथम कवि किए सुबंधु जहाँ समय होची 6ठ शताब्दी नेक्स्ट परवर्ती होती बाणभट्ट जहाँ समय होची 7म शताब्दी ओके आस देखा बाणभट्ट विषय गोटे प्रख्यात उक्ति रही पे मैंने तुम मैंने जानी सुक्नासोपदेश जेहेतु पढ़ी बाणभट्टर बहुत भाव विस्तृत भाव में तुम मैंने इंट्रोडक्शन विषय जानी पढ़ी ठीक अच्छे मत बेस कहबार आवश्यकता ना किंतु ये जानी रख कि बाणोच्छिष्टम मिदम जगत अर्थात कौन बाणोच्छिष्टम मिदम जगत अर्थात यही संपूर्ण काव्य जगत ही बाणभट्टर उच्छिष्ट सदृश अर्थात समस्त कवि निजर काव्य सौध निर्माण करने बाणभट्टर ठारू प्रचुर उपादान ग्रहण करिसंती बुझेला पिला माने बाणोच्छिष्टम मिदम जगत जो कहा जाउछि ताहार अर्थ कौन बुझेला ना हूँ कि जो आम काव्य जगत रही संस्कृत जो काव्य जगत रही काव्य जगत रे बाणभट्टर जो काव्य रही से ही काव्यरू समस्त कवि माने निजर काव्य सौध निर्माण करने बाणभट्टर काव्य ठारू प्रचुर उपादान ग्रहण करिसंती ओके बुझेला ये युक्ति मन रखिदेव यहाँ गोटे बहुत बहुत सुंदर एवं बहुत इम्पोर्टेंट बुझेला बाणोच्छिष्टम मिदम जगत छोटिया उक्ति ना इजिली मन रही ओके बाणभट्ट समय 7म शताब्दी कही ना पूर्व कवि किए सर्वप्रथम कवि सुबंधु जहाँ समय 6ठ शताब्दी परवर्ती होती महाकवि बाणभट्ट जहाँ समय होची 7म शताब्दी ओके इज दैट क्लियर ओके हर्षवर्धन सभा पंडित थिले किए महाकवि बाणभट्ट किए थिले हर्षवर्धन सभा पंडित मन रख ये कथा ओके कहार सभा पंडित थिले बोली क्वेश्चन मध्य आसीपारे हर्षवर्धन सभा पंडित थिले ओके बस्य वाणी कवि चक्रवर्ती उपाधि बाणभट्ट को राजा विमंडित करते देख पिले यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती देख जो यह कहली कि यहाँ राजा हर्षवर्धन बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती यही जो दुईटी उपाधि रहा बुझेला ये जो अच्छे बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती बुझेला यही जो उपाधि दुईटी दिगला ये उपाधि दुईटी जो दि जाए क्या द्वारा दि जाए राजा हर्षवर्धन द्वारा दि जाए क्या ना महाकवि बाणभट्ट को दि जाए बुझेला ये क्वेश्चन आसी थाए कि बस्यवाणी क्या बेले क्यों कवि उपाधि एवं किए देपरी क्वेश्चन क्यों पटू आसीपारि थाए मैंने कॉन्सेप्ट को भल भाव में क्लीयर होता ओके जो क्वेश्चन आसिले आराम से क्वेश्चन आंसर कर ठीक अच्छे तो बस्यवाणी किए उपाधि पाई महाकवि बाणभट्ट कवि चक्रवर्ती किए महाकवि बाणभट्ट एवं से
ବାଣଭଟ୍ଟ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ କବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲେ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ? ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଓକେ। ଏବଂ ବତ୍ସ୍ୟପାଣିର ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କୁ? ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଣଭଟ୍ଟ କେଉଁ ରାଜାର ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବାଣଭଟ୍ଟ କେଉଁ ପଦରେ ଥିଲେ? ସଭା ପଣ୍ଡିତ ପଦରେ ଆସିନଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଥିରେ 10 ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବେ ସେତେ ଆସିବ। କନସେପ୍ଟଟିକୁ କ୍ଲିଅର ହୋଇଥାଅ, ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଆସିବ। ଓକେ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଣଭଟ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁନି। ଓକେ। ଖାଲି ନାଁ ଜାଣିଥାଅ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ କୃତି ରହିଛି, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହର୍ଷଚରିତ। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବେ ନା, ତ ହର୍ଷଚରିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କୃତି। କାଦମ୍ବରୀ, କାଦମ୍ବରୀ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେମାନେ ସୁକ୍ନାସ ଉପଦେଶ ପଢ଼ୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ, ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ। ଏହି 5ଟି କୃତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୃତି। ଓକେ। ହର୍ଷଚରିତ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ହର୍ଷଚରିତ କିପରି ରଚନା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଟେ। ଏହା 2ଟି ଭାଗ ରହିଛି। ହର୍ଷଚରିତର କେତୋଟି ଭାଗ ରହିଛି? 2ଟି ଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ବୋଲେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ପ୍ରଥମ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ହର୍ଷଚରିତ ଆଖ୍ୟାୟିକା ରହିଛି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ। ସେଥିରେ 2ଟି ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନିଜର ଆତ୍ମକଥାକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ, ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ଓ ସମୟ ଆଦିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ହର୍ଷଚରିତର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ତଥା ତାଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ରଚନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଆଦିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମହାରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। କାଦମ୍ବରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, କାଦମ୍ବରୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥା। କାଦମ୍ବରୀ କ'ଣ? କାଳ୍ପନିକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କଥା ନା, ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତାହା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଓକେ। ଏହା ବୃହତ୍ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେଉଁ କାଦମ୍ବରୀ, ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ କଥା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ? ବୃହତ୍ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, କାହାକୁ ଆଧାର କରି ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ କାଦମ୍ବରୀକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବୁଝିଲା? ବୃହତ୍ କଥାକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ। କାଦମ୍ବରୀକୁ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ନପାରି, ବାଣଭଟ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ବାଣଭଟ୍ଟ କାଦମ୍ବରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ନପାରି ଏହି ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। କାଦମ୍ବରୀ କାବ୍ୟକୁ ସେ ଅଧା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସିଏ। ବୁଝିଲା? ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟ ଲେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? କାଦମ୍ବରୀର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କାଦମ୍ବରୀର ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ବୃହତ୍ କଥା। ଓକେ। ବୃହତ୍ କଥା ଉପରେ ସେ ବୃହତ୍ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ କାଦମ୍ବରୀକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଅଟେ। ଓକେ। ଏବଂ କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାଣଭଟ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଧା ଲେଖିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଥିଲା ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଏବଂ କାଦମ୍ବରୀର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। କାହାର କଥା? ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ କିଏ? ରାଜପୁତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଏବଂ କାଦମ୍ବରୀର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଓକେ। ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି କିନି କିଛି। ଓକେ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ କାହାର ପୁତ୍ର? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ସୁକ୍ନାସ ଉପଦେଶ ପଢ଼ିଛ, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ
ओके ठीक अच्छे। कादम्बरी रस कौन शांत रस प्रधान रस शैली पांचाली शैली देख यहाँ सर्ट क्वेश्चन आमर जो कादम्बरी रही से कादम्बरी शांत रस हूँ प्रधान रस शैली हूँ पांचाली शैली एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राय क्वेश्चन सबु वर्ष यहाँ आसी थाए कि क्यों रस रही प्रधान रस यहाँ तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पूरा बहुत इम्पोर्टेंट कहीं मुझे निजे जानी ओके प्रति वर्ष प्राय आसी थाए कि कादम्बरी जो तुम मैंने ये आसो कहूनी जो पढ़ुच कौन पढ़ुच ना सुपदेश से पचार कादम्बरी शैली विषय में पचारि पारे ये पचारि पारे तेणुक जानी था कि कादम्बरी जो ग्रंथ रही है क्यों रचित हो पांचाली शैली रचित हो पांचाली शैली रचित हो रस प्रधान रस कौन अटे प्रधान रस हूँ शांत रस ओके शांत सहित अन्य रस मान अच्छी किंतु प्रधान रस हूँ शांत रस ओके ठीक अच्छे ओके देख कादम्बरी रस ज्ञानम आहारोपि न रोचते यही उक्ति बहुत बहुत ख्याति अर्जन करी महाकवि बाणभट्टर जो आमर गद्य जो रचना रही जदि आम पढ़ुचे ताहेले आमको आहारोपि न रोचते देख कादम्बरी रस ज्ञानम कादम्बरी रस को आस्वादन कलापरे व्यक्ति को कौन होता है आहारोपि न रोचते एते भल लगी थाए एते मीठा एते सुंदर महाकवि बाणभट्टर रचित यही कादम्बरी ग्रंथ यही कथाटी जे ताहाकू पढ़िबा एवं तार रस को जदि आम आस्वादन करुचे ताहेले आमको आहारोपि न रोचते अर्थात आहार मध्य भल लगे नहीं बोली ये कह जाउछि ओके देख कादम्बरी रस को जी थरे आस्वादन करिसंती तांकु भोजन आहार मध्य रुचि नहीं ये जहाँ कहली बुझला कादम्बरी रस को जी थरे आस्वादन करिसंती ताहाकु भोजन बा आहार मध्य रुचि नहीं केवल कादम्बरी ही रुचे बुझेगा एते सुंदर तांकर शैली रही से ये कहुच्छी ओके बाणभट्टर विषय से गला नेक्स्ट आम दंडी विषय रे भल भाव देखा ओके आ गोटेटा केवल देखा ओके ये पूरा हो तुम पेशेंस रखिकी देखी दियो भल पढ़ी दियो ओके एग्जाम आसीगला तो डेरी करवा उचित नुहे मु 2-3टा वीडियो करके छोट छोट करके देवी तुम समय नष्ट हे ना गोटे वीडियो देखीदे भल ओके दंडी महाकवि दंडी देख पिले प्रथम किए गद्य काव्य आमर जो संस्कृत साहित्यर प्रथम गद्य काव्य किए महाकवि सुबंधु तांक परवर्ती किए महाकवि बाणभट्ट सुबंधु समय केते 6ठ शताब्दी एवं बाणभट्ट समय केते 7म शताब्दी तांक परवर्ती कवि होती महाकवि दंडी बुझीला देख महाकवि दंडी विषय में तुम मानक आलोचना करदे ओके महाकवि दंडी थे जड़े दाक्षिणात्य कवि महाकवि दंडी कौन थे जड़े दाक्षिणात्य कवि से पल्लव वंशर राजसभार सभा पंडित थे से क्यों वंशर सभा पंडित थे पल्लव वंशर राजसभार सभा पंडित थे महाकवि दंडी देख बाणभट्ट थे हर्षवर्धन सभा पंडित मन रख हर्षवर्धन सभा पंडित थे महाकवि बाणभट्ट एवं पल्लव वंशर राजसभार सभा पंडित थे महाकवि दंडी ओके दंडी समय हूँ 6ठ शताब्दी अंतिम भाग एवं 7म शताब्दी प्रथम भाग बोली ग्रहण करा जाउछि मन रख देख कहार सुबंधु समय 6ठ शताब्दी बाणभट्ट समय 7म शताब्दी एवं दंडी समय हूँ 6ठ शताब्दी अंतिम भाग एवं 7म शताब्दी प्रथम भाग बोली ग्रहण करा जाउछि बुझीला ओके दंडी कृति गुड़िक देखीदेवा दंडी महाकवि दंडी मुख्य कृति गुड़िक हूँ दश कुमार चरितम काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा यहाँ प्रबंध त्रयी बोली कहुए बुझेगा तो
कौन कौन दश कुमार चरित जो 10टी कुमारंक विषय आलोचना करा जायछि से वर्णना करिसेंति तांकर जन्म वृत्तांत तांकर विभिन्न कथा गुड़ाए 10टी कुमारंक विषय रही काव्यादर्श रही अवंती सुंदरी कथा रही बुझीगला यार डिटेल्स जानिबा भी दरकार नहीं केवल एतिक जानी था आग को गले भलरे पढ़िब ठीक अच्छे बाणभट्टଙ୍କ कादम्बरी सुबंधुଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତା ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ काव्य साहित्य गव्य सॉरी मुझे जो प्रबंध त्रयी हाँ ठीक ठीक किसी ना जो प्रबंध त्रयी देख पे माने प्रबंध त्रयी किए कहले यहीटा हूँ प्रबंध त्रयी अर्थात 10 कुमार चरितम काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा प्रबंध त्रयी अटे एवं गद्य गद्य काव्य त्रयी बोली कहले आमर कादम्बरी सुबंधु सॉरी 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 सुबंधु नुहे देख बाणभट्टଙ୍କ कादम्बरी सुबंधुଙ୍କ ବାସବଦତ୍ତା दंडीଙ୍କର 10 कुमार चरित देख 10 कुमार चरित ओके तो गद्य काव्य त्रयी बोली कहे काव्य साहित्यर गद्य काव्य त्रयी किए क्यों क्यों काव्य अटे बोली कहले कौन यही 3टी बाणभट्टଙ୍କ कादम्बरी सुबंधुଙ୍କ ବାସବଦତ୍ତା दंडीଙ୍କର 10 कुमार चरित होम गद्य काव्य त्रयी अटे गद्य काव्य त्रयी कौटा बोली क्वेश्चन आसी थाए देखी यहाँ मन रखिदेव कि आम गद्य त्रयी क्यों कौटा बाणभट्टଙ୍କ कादम्बरी ବାସବଦତ୍ତା सुबंधुଙ୍କ मन रख दंडीଙ୍କ 10 कुमार चरित ओके ठीक अच्छे बुझेगा तो गद्य काव्य एक एपरी साहित्य प्रकार जहाँ रूप सौंदर्य अनुभूति और कलात्मकता थिबा सत्वे गद्य शैली रे रचित देख गद्य काव्य एक एपरी साहित्य प्रकार जहाँ रूपरे सौंदर्य अनुभूति कलात्मकता थिबा सत्वे गद्य शैली रे रचित अटे यह गंभीर विषय को स्पष्ट और भावगम्य भावरे प्रस्तुत करी ओके बाणभट्ट दंडी प्रमुख कवि मानक द्वारा यह विकसित होई वर्तमान पर्यंत विभिन्न रूपरे साहित्यर मुख्य अंश हेबार सक्षम होइछि बुझेला आम गद्य काव्यर जो उद्भव विकास विषय रे थिला आम लॉन्ग क्वेश्चन एठारे संपूर्ण होउछि पिला माने एहाकू तमे माने भल भाव रे देखि बुझी देब एवं एहा बहुत इंपोर्टेंट एटले बहुत गुडाए क्वेश्चन आसीबो तेणु करी वीडियो को पूरा देखि कि भल भाव रे बुझी देब थरे न देखि कि थरे बुझिना होउछि आउ थरे देखिबो किंतु यह भल भाव में बुझब बहुत गुड़ाए सर्ट क्वेश्चन आलोचना होती सहित यह गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही लॉन्ग क्वेश्चन रे तुम मैंने 3टी लॉन्ग क्वेश्चन पाइपर गोटे सुबंधुंकर विषय रे बाणभट्टଙ୍କ विषय रे एवं महाकवि दंडीଙ୍କ विषय रे बुझेला यह केवल गद्य साहित्य उद्भव विकास को सूचित करूना एथिरे तुम मैंने 3टी महाकवि विषय रे मध्य अनेक तथ्य प्राप्त करिपारिछ एहीपरि भाव तुम मैंने जदि लॉन्ग क्वेश्चन लिखिब बहुत सुंदर मार्क्स आसीबो।